Then when we today focus on talk to the students who have taken up this library subject, library sciences. So I am compelled to talk about the tree which nurtured our writing in the earlier days in Jammu and Kashmir. Before Mughal Badshah, Akbar introduced the actual paper which we use today. There was the tradition of using the tree bark for writing the manuscripts. Even today, if we visit the Ranveer library, we will find those old manuscripts written on the tree bark. What was that tree? Yes, Bhojpatra. In Sanskrit, Bhojpatra. In Kashmiri language, it is called Burja, Burjkul. And you have the megalithic site in Kashmir, which has been named after this tree as Burj Homa. Homa means settlement. Earlier days, pit dwellers, our forefathers in Kashmir, they used to live in pits. Right? It was very chilly at that time. And in that habitation, that era, they used this tree, Bhojpatra bark, to make bandage, because modern day bandage hospital cure was not available. They used this tree even for fuel wood. Even today, there are Shina community in Gurez, Bandipura. They are still using the same. Even in my Jammu Kashmir, Kiswad area, high altitude areas, there are nomadic graziers who are still collecting the wood of Bhojpatra, birch tree. And you will see the manuscripts. There was some program here, festival of Jammu Kashmir and Ladakh, I think 2 years back. I am comfortable with this also. So in that I saw for the first time the great manuscript written by the Kalidasa. That was on Bhojpatra. So I have that picture in my collection. So you can, I don't know whether in your this central library you have some manuscripts written on Bhojpatra bark. Have you preserved those here? Very useful for good growth of hair. So nomadic graziers even today they go and they just pierce the trunk of the birch tree, Bhojpatra, and put some kind of tube and then put a bottle here. And after 2 months it is filled with some juice. That juice is taken as a tonic. Even the birch tea, herbal tea, not only writing paper but there are medicinal qualities also. And second plant. And he said कि आप आ जाओ, और फर्स्ट टाइम मैं यहीं पे सर से आकर मिली थी. He was having a tree talk. तो तभी भी मैंने कुछ लेकर आई थी सर को दिखाने के लिए. तो आई एंजॉय इट लॉट एंड मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. जैसे हम लोग, मेरा यूट्यूब चैनल था, आई यूज्ड टू कुक देसी लोकल कश्मीरी क्विजीन्स वगैरह. बट मुझे था कि कुछ कमी है. आई हैव टू कनेक्ट टू समथिंग एल्स. तो वो प्लांट से कनेक्ट था, हालांकि था कनेक्ट, मगर ये जो प्लांट्स है ना, जो फॉरेस्ट वाले हैं, ये जो छुपे हुए हैं और हमें अनअवेयर है हम लोग जिसके बारे में, तो वो ढूंढना सर के साथ इजी हो गया. और सर इतना कुछ बताते रहते हैं. एंड इसके लिए आज मैंने जो लाया है ये है एक स्वीट बनाई है, शकरकंद की स्वीट है ये. शकरकंद, स्वीट पोटैटो की, नो फ्राई एंड नो शुगर यूज्ड. Oh. तो यू कैन नो एयर फ्राई किया. हाँ, एयर फ्राई किया. तो ये एक आप टेस्ट कर सकते हैं. हम करेंगे टेस्ट. इसके 8 पीस करना, 16 पीस करना. ओके. जो भी लेंगे वो अपने खुद ही पीसेस करेंगे. नहीं, आपके लिए तो यू कैन टेक होल आल्सो. रूल इज रूल, दैट्स ट्रू. नहीं मैडम, जो भी छोड़ेंगे हम तो उसके ऊपर है, हम तोड़ेंगे नहीं. होल वाला हम नहीं तोड़ेंगे. सूंघने वाला काम ही करते हैं. नहीं, एक्चुअली ये मैंने दूसरी बार बनाया. कल मैंने बनाया था. दीजिए कर. जस्ट ऐसे ही पहले फटाफट खा लिया. हमें और दे दो. इसमें गुड़ तो नहीं डाला है? मिठास किसकी है? पोटैटो एंड मैंने मॉन्ग फ्रूट का ऊपर से हल्का सा. इसका नाम क्या दिया? शकरकंदी. शकरकंदी लड्डू. हाँ, इलायची. यार ये आपके ऊपर है. यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग योरसेल्फ. बहुत अच्छा.
बहुत बढ़िया है। और कोई ऑयल यूज नहीं हुआ, कोई चीनी यूज नहीं हुई। मैंने एक्चुअली ये चीनी में डाल के बना सकते हैं रसगुल्ले की तरह, अच्छा। बट मैंने मॉन्क फ्रूट स्वीटनर यूज किया, उसको ड्राई कर दिया ताकि एज लाइक गंदा भी ना हो हाथ। तो वंडरफुल। तो थोड़ा सा पास देके सेकंड क्या इनोवेशन है? सेकंड हमने ना शतावर ली थी, मतलब जंगली शतावर ली थी, तो जानकारी मिली इसके लिए, तो फिर इसको यूज करना था। क्या जानकारी मिली वो जरा? हिमाचल प्रदेश में लड़की की शादी पूरी नहीं होती, कैसे? जी, हिमाचल प्रदेश में एक रिचुअल है कि जो उनके मामा है, लड़की के मामा हैं, वो एक शतावर की स्टिक लेकर आएंगे, तभी उसको पूजा में रखा जाएगा और उसको आगे रिचुअल्स परफॉर्म होंगे। उसके बिना रिचुअल्स परफॉर्म नहीं होते। जैसे लड़का लड़की इम्पोर्टेंट है, वैसे ही शतावर की वो स्टिक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन वहाँ पे शतावरी नहीं कहते, क्या कहते हैं हिमाचल के लोग? सेंसर पाली। सेंसर पाली। सेंसर तो आप खुद ढूंढ सकते हो गूगल में, सेंसर पाली इन हिमाचल प्रदेश क्या यूजेस हैं। वेरी गुड। सेंसर बूटी भी कहते हैं। तो वो उसके जो लीव्स हैं, हम उसकी रूट्स एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। मूली की तरह होती है मूली वो। की तरह काफी ज्यादा बहुत सारी रूट्स इकट्ठी होती हैं। ये हमने लीव्स को यूज करके, जैसे हम टोडा राइस का टोडा खाते हैं ना, तो मैंने उसको सेंसर पाली के जो लीव्स हैं वो यूज करके इसको बनाया है। संजीत खजूरिया जी, ये पहली बार हमने इनोवेशन की है जम्मू में कि जंगली शतावर जो है, जिसको डोगरी में हम सेंस पौड़ और सेंस माया बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश में सेंसर पाली और एस्पैरेगस साइंस में है, और उसकी जो है शतमूली या शतावर कहते हैं जंगली, और उसका मैडम ने बनाया है टोडा। टोडा, बहुत राइस टोडा। इट्स ए वेरी गुड इनोवेशन एंड इट्स क्वाइट न्यूट्रिशियस। हाँ हाँ, ये खाने के लिए है। काले तिल डाले हैं, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ा सा डाल दिया ब्लैक पेपर वगैरह। आई मीन खाली लीव नहीं नहीं, इतना थोड़ी लूंगा मैं। थोड़ा एनर्जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वंडरफुल। सो ये शतावर का पराठा जीवन में मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। 66 ईयर्स में नेवर ईटन जंगली शतावर एस्पैरेगस। वेरी टेस्टी मैडम, टेस्टी है बहुत। ये सबको पहुंचना चाहिए भाई, थोड़ा थोड़ा पीस सही, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। इसमें मेथी डाली है, मेथी। ओके, एडिशनल कर लो सभी लोग बेटा। थोड़ा थोड़ा सा किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, somebody was बहुत अच्छी है। Shatavari is very good for ladies. यस, मजा आ गया मैडम। और ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, और पीछे रह गए कुछ लोग। मैडम किचन चलती है आपकी? हाँ हाँ, आप बता दीजिए। है Actually चॉकलेट का भी है, चॉकलेट भी है। आंवला का लड्डू भी मैडम ने खिलाया था पिछली बार। मोरिंगा लड्डू, बीटरूट लड्डू, बिल्कुल। उसमें अपने वो मीठा वो मिश्री का। तो लास्ट में हम ये कहेंगे, ट्री टाक 15 साल होने को है 19 दिसंबर को, और ये 15 साल पूरे नहीं होते अगर संजीत खजूरिया जी ने मेरा साथ नहीं दिया होता। कैसे? संजीत खजूरिया जी बेसिकली दूरदर्शन में थे, और एक टाइम आया फॉरेस्ट मिनिस्टर ने मुझे बुला के कहा, आप ये जो ऑफिस का काम है वो सफर होता है, आप इस ट्री टाक को बंद कर दीजिए। तो मैंने इनको बताया आप बंद, ये कहते ट्री टाक बंद क्यों हुई? मैंने कहा मिनिस्टर कह रहे हो, माई मिनिस्टर भाई, हाउ आई कैन से नो। वो कहता कि हालांकि मैं संडे को कर रहा था, भाई संडे को कौन सा ऑफिस का टाइम है ना। आफ्टर दैट ही अप्रोच द मिनिस्टर, और उनको कह के फिर उन्होंने मुझे बुलाया, नहीं शुरू करो दोबारा। इट वाज द मिरेकल ऑफ संजीत खजूरिया जी। ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा इसको वो करते हैं। संजीत खजूरिया कौन है पता है? कौन है? सो सिंपल। वो नहीं, मैडम कुछ और पूछ रहे हैं। बात अबाउट ग्रेट। कुछ और वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डॉक्टर बिंदु के हस्बैंड है ये और बताओ भाई, और भी बताओ। नहीं और कुछ नहीं, मैं ये बताऊं, ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में। ये जो ओम जी कहते हैं, ये तो हम क्लास फेलो थे कॉलेज टाइम से,
इनकी बात हमेशा दूसरों को वो सम्मान देते हैं, लेकिन मेरा उस समय भी जब ये पूरे इंसिडेंट हुआ था तो मंत्री को जब उसने दोबारा शुरू करनी उसको खुद बुलाया हमने, जबकि पूरी ब्यूरोक्रेसी मंत्री के पीछे थी कि इस प्रोग्राम में आपने नहीं जाना। तो हमने भी मंत्री से कहा, उसके साथ मेरी पुरानी दोस्ती थी, मैंने कहा देख मेरी तेरी दोस्ती इधर खत्म, अगर तू उस फंक्शन नहीं, में वो नहीं आया। अखनूर में था वो, डुम्मी है वो, फॉरेस्ट क्या था वो आपका गार्ड ट्रेनिंग स्कूल था वहाँ पे। तो फिर वो उआ करता था नहीं फोन करता है, मुझे नहीं अल्ताफ थे। जाना है मीटिंग में, फलाना ढमकाना है। मैं कहा उनको भी नहीं भैया, धकाने वाले लोग होते हैं। अल्टीमेटली ही के। और वो मैं उसको इस नजर से देखता हूँ कि यहाँ सूरज होता है ना, वहाँ अंधेरा नहीं रहता, बाकी माध्यम होते हैं सारे। तो यहाँ ये है कि क्या मिनिस्टर, क्या इनको तो इंटरनेशनल फिगर है, इनका ये जो ट्री टॉक का कार्यक्रम था यहाँ नहीं विदेशों में, यूएस तक, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ पे जाके इन्होंने किया। और पहले मैं खुद सीखता हूँ, ट्राई करता हूँ, जो मैंने सीखा है इट शुड बी डिसेमिनेटेड। और दूसरा मेहनत करनी पड़ती है सीखने के लिए। देख लीजिए इनको हर पेड़ पौधे का एक एक नाम, हिंदी में क्या, संस्कृत में, उर्दू में क्या, कहाँ से प्लांट आया। तो ये उस टाइम के भी टॉपर थे, फिर सिविल सर्विसेज में टॉपर रहे, फिर IFMS में तो थे ही थे। तो ही इज अ जेम एंड आई एम प्राउड टू बी हिज फ्रेंड एंड स्टिल ही रिमेंबर्स मी। सबसे खासियत जो है ना, एक स्पेशल ट्रेट होता है हर एक का, जो मेरे में नहीं है। आई कैन नॉट सिंग बट ही इज वंडरफुल सिंगर। और जब हम साइंस कॉलेज में पहली बार हम मुंबई वगैरह उधर गए थे जो टूर पे, तो वहां इन्होंने रास्ते में मुकद्दर के, सिकंदर के खूबसूरत गाने सुनाए थे। आज भी कुछ सुनाएंगे, कुछ भी। आज इससे रिलेटेड हाँ, बहुत कुछ है हमारे बड़ा काम का इंडियन सिनेमा में, ठीक है। पता क्या होता है, उसके लिए भी मूड होता है। नहीं मूड की बात नहीं होती, बस अब एक उम्र होती है ना वो। नहीं कह रहे हैं आप भजन गाने वाली उम्र है। नहीं प्लीज। नहीं वो बात यह है कि माइंड सेट वहाँ लेना पड़ता है 30-35 इयर्स बैक, वो लेके जाता हूँ। देन आई एक थोड़ा सा सुनाऊंगा, थोड़ा सा जरूर। आपकी अध्यक्ष महोदय की। ओ, ओ, आ, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तूने कहाँ से। मेरे दिल को तुम भा गए, मेरी क्या तीस में खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ।
हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था, वही फूल हमने चुना गुलसितां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाली, बताइए हुनर तुमने सीखा कहाँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। भजन गाना भी हुई नहीं है।